तो मिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल फेयर हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का लेटर बिल्कुल क्लियर है, समन्स बहुत क्लियर है। मिस्टर अनिल देशमुख इज अवॉइडिंग क्वेश्चनिंग, और यही बात ईडी कह रही है। यस रेनू, प्लीज गो अहेड। हाय सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। सर, वो लोग बोलते ना रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया, तो यही है। और उनसे जरा पूछिए वो पब्लिक सर्वेंट कहाँ से और किधर से है, जरा वो हमको बता दें कि भाई क्या उन्होंने क्या क्या किसी ने चेक किया? इज अ फॉर्मर मिनिस्टर, कैन ही यूज दैट अशोका एम्बलम? है रूल में? सर मैंने तो चेक नहीं किया, बट एज पर लाइक किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए इफ ही इज नॉट, इफ शी और ही इज नॉट ऑन दैट पोस्ट, दे कैन नॉट यूज इट। They cannot use it. That's what my understanding. यस, दैट Please, इज दी। someone, please let me know कि क्या is it, सर because लेकिन I have not seen the messages. Is it allowed as per rule that a person who has left a public servant job or position, can he use Ashoka emblem on his letterhead? Yes, Renu, go ahead. sir, as per my knowledge, no, they are not. But again, he is Mr. Deshmukh, na, so he can do. He is a citizen of India. Okay. Only he Someone has called the someone rights. called GS. GS full name nahi hai. He's saying no, you cannot. So I think you are right. I also felt that no one can. So वही मैं बोलूँ ना सर, लेकिन वो कर सकते हैं because he has the rights to knock the door of Supreme Court. He has the right, fundamental right as a citizen of India, you know, कि सब जगह जा सके। हमारे पास वो राइट नहीं है, हमें तो पहला समन मिलता है और हमें कान से, पैर से पकड़ के, बाल से पकड़ के ईडी और कोई भी वो ले जा, ईडी क्या सर, एक हवलदार हमको लेके जा सकता है। और ये तो भाई बोला ना, इसलिए ये लोगो भी यूज ये कर सकते सरकार है हैं। ना। हाँ, एज पर रूल जो रूल है वो ये है, रेनू, नो पर्सन इंक्लूडिंग फॉर्मर functionaries of the government like former ministers, former members of parliament, former members of legislative assemblies, former judges and retired government officials other than those authorized under these rules shall use the emblem in any manner. So it cannot be used. So there is cannot a be used. strong violation by Mr. Anil Deshmukh by using Ashoka emblem on his letterhead. He has violated it. This is the most important thing. I think there should be a case filed against him for this also. That under what Correct. capacity did he decide to use? Maybe because he's a member of a legislative assembly, that may be giving him a right to do that. I am not sure. Ki merely being an MLA, do you still have a right to use emblem? But then he is not mentioning that, Renu. He is writing Anil Deshmukh, former Home Minister Maharashtra, and then using the Ashoka emblem. So if he would have written MLA, I could have still bought that logic. But he is writing former Minister Maharashtra, Home Minister Maharashtra, and then using Ashoka emblem. I think it's not allowed. Yes, go ahead. सर ये लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, बोल रहे हैं ना क्या अभी। ये एक्चुअली ये रूल जो आप पूछ रहे हैं, ये यूपी में भी शायद मिस्टर योगी जी ने जो है उन्होंने वायलेट की, मतलब सभी लोगों को बोला कि whosoever is using like somebody they use police, or somebody use magistrate, somebody use press or something, but they are not in that profession anymore, or they have left that company or something, so they are not eligible to use that. And this is a very it is just a weeks ago when he ordered that if anyone found guilty about it, he will be charged and booked in some charges or something. तो ये तो जहां तक हमें पता है और हमें पढ़ाया गया है, ये तो ये पढ़ाया गया, लेकिन सर इन लोगों की हिस्ट्री और इन लोगों की ज्योग्राफी इज डिफरेंट। एक चीज और भी, अगर people are listening to me, please also check. Can an MLA use Ashoka emblem on his letterhead? Can an MLA? Please check that. एक बार गूगल करके मुझे बताइए कि can do Renu, not you. I'm asking others. Please check through Google. Please Google it. Is an MLA of any legislative assembly entitled to use Ashoka emblem on his letterhead? Please check that also. Yes, Renu, go ahead. तो सर इनकी तो बात ही निराली है। ये तो जब जब खुद पे पड़ती है तो ये सिटीजन बन जाते हैं, ये सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, फिर ये लोग बहुत मासूम बन जाते हैं, ये लोग हर चीज में कोऑपरेट करते हैं, लेकिन एजेंसीज इनके साथ कोऑपरेट नहीं करती है। तो सर ये तो सबकी आंखें खुद ही हुई हैं। So रेनू, अर्णब गोस्वामी का केस मुझे याद है ना? अर्णब गोस्वामी केस में वीडियो में
कैमरे पे मैंने सुना था, अर्नब बोल रहा था मुझे वो वारंट दो, वारंट राइट। उसकी वाइफ भी मांग रही थी ना, अर्नब की वाइफ भी मांग रही थी, हम्म, लेकिन इन्होंने कहा वो सब कुछ नहीं दिया जाएगा, राइट। दैट लेडी कांस्टेबल वाज देयर, राइट। शी सेइंग कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आप साइन करो, करेक्ट। पहले आप साइन करो, आप पहले साइन करो, करेक्ट। तो फिर आज मिस्टर अनिल देशमुख किस बेसिस पे मांग रहे हैं? क्या अर्नब गोस्वामी के राइट्स नहीं थे? नहीं नहीं सर, वही तो मैं बोल रही हूँ, इनके इन लोगों के डिफरेंट राइट्स होते हैं ना सर। जैसे कि मिस्टर राउत के भी घर पे, जब उनके घर पे ईडी ने समन भेजा था तो उन्होंने भी कहा था मेरी फैमिली को घसीटा जा रहा है, मेरे बच्चों को घसीटा जा रहा है। लेकिन हम लोगों के तो कुछ नहीं, हम लोगों की तो फैमिली नहीं होती है सर। हाँ हमारी बिल्कुल। फैमिली कौन है? आम हमारी आदमी कोई की फैमिली नहीं है, आम आदमी हमारे की लिए फैमिली तो थोड़ी होती है, आम आदमी की इज्जत को इज्जत थोड़ी हाँ होती है। सर। एक 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 हम अपना लोन नहीं पे करते हैं सर, तो आके हमारा हमारा होम लोन हम नहीं पे करते सर, तो बैंक के 2-4 गुंडे भेज दिए जाते हैं हमारे घर पे और हमारा घर सील कर दिया जाता है, आपका घर सील कर दिया जाता है, आपकी गाड़ी उठा ली जाती है। उठा ली जाती है। और सर वो इनका क्या शिंदे हो रहा है? शिंदे और पलांडे इसी केस में एग्जांपल है, इन्हीं के सेक्रेटरी, हम्म। इन्हीं के असिस्टेंट है। उनको उठाने में तो 1 मिनट नहीं लगा, और इनके क्योंकि वो लिए तो सर, गरीब लोग हैं ना। हाँ। उनको उनको रोकने वाला कौन है? मिस्टर अनिल देशमुख ने भी नहीं बचाया उनको, तो है ना, ये उनके बॉस थे। हम्म। तो सर वही बात है ना कि मतलब इतना कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल कैसे करना वो इन लोगों को मालूम है, और जब खुद पे पड़ती है तो बहुत बुरा लगता है सर। बट अगेन आई एम नॉट थिंकिंग इन दैट मैटर। माय क्वेश्चन इज टू ईडी कि क्या वो अभी भी इतना बड़ा आपके लिए आदमी है कि आप उसके लिए इतना सोच रहे हैं? आपने उसको 3-3 सम्मन भेजे, और अगर ऐसा है तो प्लीज चेंज करिए ये रूल, और हम आम आदमियों के लिए भी ये करिए आप, कि अगर हम पहला फेल करते हैं तो हमें दूसरा चांस दें, अरे हमें भी तो इसमें तीसरा इसमें चांस दें। इसमें इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है ना रेनू। एक बहुत सिंपल सी बात है, 3 समन्स के बाद अभी भी तो अरेस्ट नहीं हुए ना ये, इनकी तो क्वेश्चनिंग भी नहीं हुई है, छोड़ो अरेस्ट, अरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। इनका तो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, 3 समन्स निकल गए, करेक्ट। भाई वो पलांडे और शिंदे ने क्या गलती की थी? उनको इसी केस में सेम रूल होना चाहिए था ना। वो तो बेनिफिशियरी नहीं थे, वो तो इनके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे। बेनिफिशियरी तो ये, इनके लिए जो बेनिफिशियरी है उनको आप 3 समन दे रहे हैं, और उन दोनों बेचारों को पहले दिन उठा लिया आपने। सर यही तो बात है कि मैं एजेंसी से ही क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि ऐसे दोगले तरीके आप कैसे अपनाते हो, और इनके आप लेटर्स के जवाब भी दे रहे हैं। तो अब बताता हूं उसका उसका फ्लिप साइड क्या है। उन दोनों को तो अरेस्ट कर लिया, उन दोनों के खिलाफ ये 3 चार्जेस एडिशनल चार्ज नहीं लगे। जैसे उनके खिलाफ ईडी ये नहीं बोल सकता कि इन्होंने डिले किया, इन्होंने समन्स नहीं माना, ये अपियर नहीं हुए। मिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ जो चार्जशीट बनेगी उसमें 3 चीज अलग लगेंगे कि सर तो मिस्टर इनके अनिल लिए, देशमुख अवॉइड कर रहे थे। सर अनिल देशमुख के लिए वो तमगा है, वो गोल्ड मेडल है उनके लिए वो तो, कि भाई मैंने तो ईडी के 3-3 समन को मतलब दरकिनार कर दिया, मेरे तो हो गए। तो सर इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली ये दुखड़ाई दिखाते हैं, जो बोलते हैं सिर्फ बोलते हैं कि हम ऐसा हम वैसा, कुछ नहीं है सर इन लोगों को। और अगर मान लीजिए कि चांस आ भी गया तो हॉस्पिटलाइजेशन तो इज मस्ट फॉर देम, दे विल बी हॉस्पिटलाइज्ड। सो अगेन लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। वैसे तो इनको इनके पास राइट है, हम तो जैसे ही पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट हमको लात मार देती है और बोलती है कि भाई तुम पहले सेशंस कोर्ट में जाओ, पहले हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद हमारे पास आना। तो हमारा तो केस सब वैसे ही लटकता रहता है, और उसके पहले तो हमारे साथ सब कुछ हो जाता है। तो एनी विच वेज, अगेन मेरा सीधा सीधा सवाल, जब आप इतने पढ़ लिख कर जाते हैं और आपके पास इतने राइट्स होते हैं तो प्लीज उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर मत दिखाइए, अगर आप हमारे साथ नहीं दिखाते हैं तो। मेरा सभी एजेंसी से, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, उनसे यही कहना है कि प्लीज अगर कोई अक्यूज है तो उसके लिए, अगर अगर वो आम आदमी है अक्यूज, तो आप उसके लिए जैसा बर्ताव करते हैं वैसा कोई वो पॉलिटिशियन हो, कोई वो बड़ा आदमी हो, उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाए। ओके यही। एक चीज बताइए रेनू, हम लोग ने तो पिछले 1 साल में बहुत सारे केसेस देख लिए है ना, बहुत सुशांत सिंह राजपूत से सारा मामला स्टार्ट हुआ है, और हर केस ना उससे जुड़ा हुआ है। हम लोग कोई भी केस बात करते हैं बगैर सुशांत सिंह राजपूत के कंप्लीट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यही सरकार थी उस टाइम, है ना। करेक्ट। इन्होंने ही, भाई इन्हीं से कोई मिला तभी तो अर्नब गोस्वामी केस खोला ना, इन्हीं से तो मिला था। और इन्होंने कहा था मैं तो खोलूंगा केस, करेक्ट। उस टाइम प्रोसीजर कहाँ गया था? उस टाइम प्रोसीजर का याद नहीं रहा था क्या आपको? यहां पर अभी आपने बोला ना कि ईडी इनको टाइम क्यों दे रही है। इनका कहना है कि ईडी जो है प्रोसीजर को ताक पर रखकर
मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भाई ऐसा तो आपने कौन सा क्या प्रोसीजर ताक पे रख दिया गया है? 3 समन्स आपको दिए गए जो कि देने नहीं चाहिए थे, करेक्ट? आप आज भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हो और कह रहे हो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता मुझे मत छुओ। अरे भाई क्या आप बोल सकते हो? सर कोई स्टे है? नहीं है। क्यों ईडी नहीं क्वेश्चन कर रही इनको? अपने आदमी भेज के इनको क्वेश्चन क्यों नहीं करती ईडी? सही कोई बात स्टे नहीं है ना, तो फिर आप क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो? ये क्यों नहीं गए आज और इनके बेटे कल क्यों नहीं जाएंगे? भाई कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया है ना। अब ये इनका कहना कि मैं कोर्ट चला गया हूं, अब आप इंतजार कीजिए, तो वाह, कल तो ये कहेंगे मैं वहां चला गया हूं, आप इंतजार कीजिए, और एजेंसी इंतजार करती रहेगी। सर वही यही मेरा तो अगेन एंड अगेन यही क्वेश्चन है सभी एजेंसी से कि ऐसा क्यों है। मतलब पता नहीं इन लोगों का ऐसा क्या पावर होता है या इन लोगों का ऐसा क्या डर है कि ये होता है। बट सर अगर जरा हम लोग थोड़ा मतलब वो हो जाए, क्या बोलते हैं, हमारी एजेंसी थोड़ी ज्यादा टाइट हो जाए, अपने हाथों में सारी चीजें लें, तो आई थिंक कि सुधार हो सकता है सर, बिकॉज दे आर वर्किंग बट उनको काम करने नहीं देते। मैंने पूरा लेटर पढ़ा ना, बहुत सारे रेलिवेंट पोर्शन पढ़ा। इस लेटर में रेनू क्या लगा? कुछ पार्ट में तो ये थोड़ा धमकी दे रहे हैं, कुछ पार्ट में इनको ही धमका दिया है अच्छे से, है ना, कि आप तो मुझे समझाओ मत कि रूल क्या है ना। आपने अवॉइड किया है ये जो दादागिरी डिक्टेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। उस दिन हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्या ये मिस्टर अनिल देशमुख डिक्टेट कर रहे हैं। आज ईडी ने एग्जैक्टली लिख के दे दिया। तो हम लोग जो बोल रहे थे हवा में नहीं बोल रहे थे, वो एग्जैक्टली उन्होंने लिख के दिया कि आप डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हो, गलती करो मत। तो ये जो लेटर में जो भी कहा, कहीं कहीं वो डर भी रहे हैं, अप्रिहेंशन भी बता रहे हैं, डरा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, ग्राउंड भी बता रहे हैं, फिर कुछ और भी चीज बोल रहे हैं, फिर लॉ भी बता रहे हैं। क्या क्या लगा, जो एक फीलिंग क्या आई इस पूरे लेटर में जो मिस्टर अनिल देशमुख ने लिखा? सर अनिल देशमुख का एक मतलब बोलते हैं ना सर, एक डर उनके सामने ये है कि अगर मैं चला गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, बिकॉज ही नोज कि उनके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्यादे थे वो चेक एंड मेट हो चुके हैं। करेक्ट। So Correct. now he knows कि if he goes for the questioning, definitely he will be going to be in a big trouble. He So may be arrested. That's the real thing. yes, he and his son definitely. So now he is trying to say कि एजेंसी मुझे मलाइज करने की कोशिश कर रही है, मेरे पे झूठे आरोप लगा रही है, जो भी है। तो वो सारी चीजें उनका मतलब ये डर भी बताता है सर कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आप जाने से डरते क्यों हैं? पहली बात तो जब आपको सारी चीजें भेज दी गई हैं, आपको बकायदा बुलाया गया, आपके घर में रेड्स होने के बाद आपके खिलाफ सबूत मिले, और तब और फिर मेरा तो ये भी क्वेश्चन था कि आप कौन होते हैं एजेंसी से पूछने वाले कि मुझे तुम्हारी ईसीआर रिपोर्ट और पता नहीं क्या 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 दो। इन लोगों को ये सब मालूम कैसे होता है सर क्या? कि ईसीआर रिपोर्ट होती है तो ये नहीं, होती है तो ईसीआर का तो रेफरेंस है ना, इसमें भी तो है ना, उन्होंने शुरू ही किया ना उसी से। ये तो आपको भी देगा, कोई भी केस में ईसीआर तो रेफरेंस होगा ना। जैसे उन्होंने लिया ना सब्जेक्ट योर लेटर बियरिंग ईसीआईआर नंबर। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो ईसीआईआर है इसके सारे डिटेल मुझे दे दीजिए। अरे भाई, अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी आपको सारी चीजें बताई देगी तो फिर तो आप करोगे रिप्लाई, है ना। तो मतलब आपने सोचा क्या हुआ है कि वो सारी चीजें लाके आपको दे दे, फिर आप बता दें कि सर हम ये कर रहे हैं और आप जाके फिर अपना ये कर लो। एग्जैक्टली। तो सर भैया आज तक इनका यही काम होता रहा है ना, इन लोगों का यही काम होता रहा है। जो अच्छी चीज है रेनू, मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये कि चाहे ईडी कुछ भी कर रही, उसने जो भी कुछ भी किया है ना, सॉफ्ट जा रहे हो नहीं जा रहे हो, लेकिन उन्होंने इतना जरूर इनको कह दिया क्लियरली कि ज्यादा दादागिरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत हो गया, डिक्टेट मत करो कि हमें काम कैसे करना है। आप कल तक सरकार थे, आज आपको एजेंसी बता रही है चुपचाप बैठो, जो कह रहे हैं चुपचाप करो। यही तो कहा है ना उन्होंने पूरी लेटर का। भाई ईडी के समझ में आपको यही कहा गया है ना कि आप मत बताओगे हमको क्या करना है, हम जो कह रहे हैं वो करो। आपको बोला गया 3 बार आने, आप नहीं आए। आपको समन भेजा गया, आपने समन को इग्नोर किया। आप डिले कर रहे हो, आप बच के निकलने की कोशिश कर रहे हो, आज भी आप डिले कर रहे हो। तो ये दादागिरी मत बताओ कि हमको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, हम कहां पर क्वेश्चन करें, हम कैसे क्वेश्चनिंग करें, ये मेरा प्रेरोगेटिव, आपका नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि उसको ईडी ने इनको अपनी पोजीशन बताई कि यू आर जस्ट अ सस्पेक्ट एंड जस्ट बिहेव लाइक अ सस्पेक्ट। सो दैट इज द पॉजिटिव थिंग दैट आई फाउंड आउट ऑफ दिस। यस, मैंने भी वही बोला सर कि इनको, मुझे पॉजिटिविटी ये लगी कि उनका डर दिख रहा है
भले हल्का सा, भले मतलब बोलते ना कि थोड़ा सा, मगर दिख रहा है डर। पर यस, अगेन रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, तो सर इन लोगों का नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक कहावत दोनों ही है, रस्सी जल गई बल नहीं गया, उसमें भी हटता है। और दूसरा अभी जो पढ़ रहा है ना लेटर में, वो है खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बौखला के आपने बोला कि आप जब झूठ बोल रहे हो, आप सब गलत बोल रहे हो, भाई कल प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करोगे? वो जो 12 कंपनियां हैं जहां से आपने घुमाया पैसे को, वो ट्रस्ट जो है जहां पैसे गए, वो ट्रस्ट किसका है? इनका ही है सर। हो सकता है ये तैयारी करेंगे ट्रस्ट किसी और के नाम पे। इनका है, इनके वाइफ का है, इनके बेटे के हैं बेटे। उसमें। भाई ऋषिकेश देशमुख को ही क्यों? ऋषिकेश देशमुख ने जैन को कांटेक्ट क्यों किया? एजेंसी ने सारा कुछ लाके रख दिया आपके सामने। अब पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। मिस्टर देशमुख को लगता है कि पब्लिक में मेरा परसेप्शन खराब हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ईडी को ही लपेट दिया। सर बस इन लोगों की कुछ नहीं चलेगा, लेट्स सी। महाराष्ट्र में जो पिछले 1 साल में हुआ है रेनू, अलग अलग केसेस में, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस की है, या एरोगेंस है, या ये लोग भूल गए हैं कि लोग भी देख रहे हैं? क्या है? व्हाट इज द रीजन कि इस तरह से सर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में आपको रहे पता है लोग बिहेव करते एक नहीं, एक कहावत है ना कि वो जो मदमस्त हाथी जब मदमस्त हो जाता है, तो वो फिर ये नहीं देखता है कि मतलब मैं कहाँ चल रहा हूँ, वो सब चीज रौनता को चलता चला जाता है। तो सर अभी इन लोगों का यही हो गया था। और एक्चुअली सही मायने में कोविड ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन, हम इतनी इंफॉर्मेशन ढूंढने लगे या इतना सब चीजों में जाने लगे, वरना इसके पहले हम लोग कभी नहीं जाते थे। अरे मतलब अरे हो गया, न्यूज सुन लिया, खत्म हो गया। बट अगेन ये सब चीजें जो है सर इतनी हम लोगों में क्यों चली गई, क्योंकि हमें भी समझ में आने लगा। तो अब ये लोग जो है ये सर शुरू से है, दिस इज नॉट न्यू। पर अब हमें समझ में आ रहा है कि ये लोग बस मस्त हाथी की तरह चूर रहते हैं मजे में, आग लगे बस्ती में, मस्तरा मस्ती में। इन लोगों में से बहुत लोगों ने डायलॉग भी मारे थे कि मस्तरा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो सर ये लोग वही है कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आज तक हम इतने सालों से कर रहे हैं। तो सर अब धीरे अभी धीरे तो अभी भले तो मुट्ठी अभी तो मुंबई और मुंबई से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, वो क्योंकि अभी अभी कोविड के कारण और वैसे भी जो बंद है, उसमें बहुत सारे दूसरे काम निपटा रहे हैं लोग। जो जो काम निपटा सकते हैं सब निपटा रहे हैं, कुछ पर्सनल, कुछ ऑफिशियल, कुछ अदरवाइज, जितने भी काम निपटा सकते हैं, क्योंकि ये छुट्टी बार बार मिलेगी नहीं, तो निपटाए जा रहे हैं। हाँ सर सही बात है। ठीक है, ओके ओके। ओके एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नहीं सर, एनीथिंग एल्स नहीं, बस यही सब बोलना है। अभी क्या अब देखते हैं, वी आर होपिंग Okay, कि let's see what Supreme Court does. यस। Okay, thanks. थैंक यू, गुड नाइट Okay, सर। so I hope others are able to connect, because I'm not sure whether others are anyone else is trying, because I don't find anyone here. So I hope that you people are able to use the link and the link is working, because Renu could connect. So I am sure others can also connect. So the point is very simple. जब भी कोई नेता परेशानी में होता है, तब उसको समझ में आता है कि कानून उसके लिए बनता है। जब तक वो खुद सरकार होता है तो लगता है कि कानून तो उसने बनाया है अपने सहूलियत के लिए, लेकिन जब वो कटघरे में आता है तो वो दूसरों को बताता है कानून नागरिकों के लिए बना है, वो अचानक नागरिक बन जाता है। भाई कौन सा नागरिक है जो टर्म्स डिक्टेट करता है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अशोका एम्बलम इस्तेमाल करने का हक मिस्टर अनिल देशमुख को है इस लेटर पैड पे या नहीं? क्योंकि जितने भी चीजें मैंने चेक की, जितने भी चीजें आप लोगों ने चेक की, उसके मुताबिक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जो बताता है कि उनके पास ये हक यूज करने का है एज अ फॉर्मर होम मिनिस्टर, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज राइटिंग। ही इज राइटिंग मिस्टर अनिल देशमुख, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और इस हैसियत से अशोका एम्बलम इस्तेमाल करने का हक उनके पास नहीं है। फिर उन्होंने कैसे लेटर हेड पे अशोका एम्बलम का इस्तेमाल किया? नाउ दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। आई एम श्योर किसी न किसी की नजर इस पर जरूर पड़ेगी। आई विल जस्ट चेक विद द लॉयर आफ्टर द शो एंड आई विल गेट बैक ऑन दिस with all of you, that can Mr. Anil Deshmukh use it, and second, if he has used it and he is not authorized, then this is another violation, and under which law is it a violation? So I'll get back to you on that after the show. Let me just check the rules. I am just going through it कि who are the people who can use, कुछ लोगों ने ऑलरेडी बताया कि कौन कौन यूज कर सकते हैं।
Jaya Lodha is saying, सर कुछ नहीं, पैसे और पावर का घमंड है, और पावर के घमंड में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है इन सबको, बस यही कहानी है. He cannot use that as he is not in the post. Yes, Chavli, I understand that. My only question is, she's saying this, he cannot use that as he is not in the position. I understand that. My only question is an MLA entitled to do that? Can an MLA use it? If MLA can use it, then in the capacity of an MLA, he can very well use it. So I'm not very sure. So please check that out. Gaurav has joined. Gaurav Gupta, he is joined for the first time. Gaurav, please set your camera right. आपका कैमरा ना बहुत परफेक्ट नहीं है, आपका फेस कट रहा है, तो आप पहले कैमरा को सेट कीजिए, फिर मैं आपको ले रहा हूँ. आप थोड़ा सा अपने ऊपर वाले पार्ट को कम कीजिए, आपके फेस से ऊपर वाला पार्ट बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, आप कम नजर आ रहे हैं. गौरव, आवाज आ रही है? गौरव, आवाज आ रही है आपको? शायद गौरव को मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इट्स ओके. सो चावली, जस्ट चेक दैट आउट कि क्या एमएलए को यहाँ क्या कि नहीं है. नॉट अलाउड टू यूज नेशनल अशोका एम्बलम. यस, आई अंडरस्टैंड जेनेका. जस्ट कंफर्म दिस अगेन आई एम सेइंग, यस, एज अ मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर, ही कैन नॉट यूज इट. वो तो लिख के भेज दिया. प्लीज ऑल्सो रेफर मी जहां पर ये लिखा है कि एन एमएलए इज नॉट इंटाइटल्ड टू यूज इट ऑन हिज लेटर हेड. ये कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा. सो इफ यू गेट इट, प्लीज put that text here so that I can read that out for all the viewers who are listening to us. So Janika is saying MLA is also not allowed. Yes, Janika, please refer the rule under which they are not allowed. There must be a rule under which they are not allowed. So please refer me that rule. Which is that rule? Okay. No one can use it. I know a lot of people said that. I've already read it. As per rule, who all can use? I can tell you: serving government officials, ministers, judges. Apart from that, chief ministers, ministers in state government. I'm still not sure whether members of legislative assembly and legislative council can use that or not. A member of parliament can use that or not. So I'm not very sure of that, and that is why I'm repeatedly asking this question. Today, Mr. Anil Deshmukh is really, really worried man. Gaurav, can you hear me? आवाज आ रही है? गौरव को आवाज नहीं आ रही है. I'm asking repeatedly and he's not responding. He was there in the studio, but I could not connect him because he could not hear me. Kritika is asking a question. I'll prompt her question. She's asking, sir, if SC tells Deshmukh to go to HC, then will he be given more time? Now, this is a very critical question. Kritika, it's very simple. Supreme Court has two options. Supreme Court, as option number 1, can hear his petition and decide. Option number 2, Supreme Court can ask him to go to Bombay High Court, exhaust your option there, and then come back if he doesn't get a favorable response there. ऐसे में he'll have to immediately move Mumbai High Court, because otherwise the protection is not there. अगर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन देगा भी, देना भी चाहे तो नहीं देगा. अगर वो रेफर कर रहा है हाई कोर्ट को, तो मिस्टर अनिल देशमुख को तुरंत हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा. मिस्टर अनिल देशमुख कैन नॉट अवॉइड इट फॉर टू लॉन्ग. इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट. ही नोज इट. वो ईडी समन्स को अवॉइड नहीं कर सकते बहुत दिन तक, और ईडी ऑफिस जाने के बाद वो श्योर नहीं है कि क्या वो केवल क्वेश्चनिंग तक रहेगा या फिर वो बात कहीं और भी जाएगी, क्योंकि उनको ये डर है बहुत क्लियरली कि एंड ऑफ द डे कहीं ऐसा ना हो कि उनको अरेस्ट किया जाए, और अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया तो फिर एम्बैरेसमेंट गवर्नमेंट की ओर बढ़ जाएगी, एनसीपी की बढ़ जाएगी, जिस पार्टी के वो लीडर है. सो दिस आर द कंसर्न बिकॉज ऑफ विच ही इज doing what he is doing. It's about the reputation of this government, number 1. Number 2, Nationalist Congress, NCP, which is National Congress Party, उसकी reputation की बात है.
और मिस्टर अनिल देशमुख के अपने रेपुटेशन की बात है. So hi Jennifer, thank you so much for connecting. So what did you make out of his letter? क्या लगा इस लेटर में that you found it important? Good evening, sir. Am I audible? Yes, it's clearly ordered. Okay, couple of things. Looks like people from Facebook are not able to connect because I was having an issue with Facebook also today for some reason through my laptops. I've connected through YouTube. Okay. So The please second- connect through YouTube. Those who are not able to connect through Facebook, I request them to move to YouTube and they can connect via YouTube. So please do that because she's informing there's a problem through Facebook. So those who are trying via Facebook should try via YouTube. Yes, yes, Jennifer, go ahead. Okay, so I am Set your frame right. Your frame is not perfect because you are on the lower side of the frame. So yes. Is this better? Yeah, it's better. Yes. Go ahead. Okay, so I'm actually looking at this website. It's called indiacode.nic.in, and sorry, it's called indianqanun.org. And I'm reading directly from there. It says no person, including former functionaries of government like former ministers, former members of parliament, members of legislative assembly. So it Former or sitting? Okay, I'll read again. It says no person, including former functionaries of government like former ministers of parliament, former members of legislative assemblies, former judges, retired government officials, other than those authorized under these rules shall use the So emblem it is all in any about manner. former, and I'm repeating this question. That is a sitting MLA. Can a sitting MLA use it or not? This is about former. He is not a former MLA. He is a sitting MLA. Okay, so I have also shared the link with you. Probably a lot of this is written in Hindi, so you can read it and probably take it up next time when you come. So can I talk on today's topic? Yeah, please go ahead. Okay. So I am actually enjoying today's show. For me, what looks like is Mr. Deshmukh ji बहुत बुरा फंसे हैं आज. Not आज, I mean upcoming days also. And what intrigues me more is, to see the kind of creative ideas that he's coming with. When I read this news today in the morning, I was really surprised to see how and in what capacity he is blaming everything around him. So the subject, the header that you've chosen is also very nice. That he's so agitated that he's not leaving anybody around him. Jisko marzi, he's blaming everyone from ED. Yes. I'm just waiting for him to say something to Supreme Court also. In all his anger and frustration, he might just go back and tell something against Supreme Court also, and that will be something really surprising for a person of his caliber to be so insensitive and make such comments. So I When see their chips are down, ना जब इनका chips down होता है, exactly. फिर ये उल्टा ले लेते हैं. Exactly. So everything about him, from Khisyai, Billi, Khamba Noche to Kursi Ka Dhausa, whatever, he's trying everything possible. बल नहीं गया is what Renu was saying. So you should actually read some of the comments on chat. They're like really hilarious. I mean, it's just adding up to your narration. I mean, though I understand that this is a serious topic that we're talking about, but a minister can stoop to such level, and वो कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है when your mind stops working when you are surrounded by trouble. I'm stunned, Jennifer. He has used this for enforcement directorate. He's saying Exactly. that you have violated. I am asking for documents. I am asking for the PCI record, and you are not giving me. And then you are blaming me of not fulfilling the conditions of the summons. Now then he uses the phrase. What is the phrase that he has used? That it is like a. I'll just read out. Basically, जो बताता है. A pot calling the kettle black. Yes. Pot calling a kettle black basically means, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. You are at fault and you are blaming me. Is that what it means? Right? Right. तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. So ये हो गया कोतवाल और वो हो गया चोर.
Sir, the other thing I actually laughed when I was reading that article on Deshmukh ji was when he said that, you know, I have compiled with all the summons by appearing through authorized representative. Right, so इनको इतनी डर लगती है to face agencies that they will send a representative. So, you know, it all boils down that if I have the money and power, I don't have to face agencies. I can just go, you know, No, as in no. This is his interpretation of the whole thing. exactly. He is saying कि भाई मैंने तो सब कंप्लाई कर दिया ना, Exactly. मैंने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया. ED is saying no. We haven't called the representative. We have called you in person. और अगर if you listen to his statement carefully, उस statement में he is himself contradicting what he is writing by saying I could not come because of these reasons, so I sent the representative. That means you knew that you have to appear, but you chose a way to send your representative because you are scared. You are scared because आपको मालूम है कि आपके assistants उनकी custody में है, आप गए तो उनके साथ बैठा के आपकी questioning करते. So the other thing that surprises me is somewhere one of the articles I read that he is okay to do a video conferencing, Yes. right? Yes. So why would he be okay to talk in video conferencing than facing the EDs face to face? How is it different? It's different. It's absolutely different. जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो like I am there on the screen and you are there on the screen. Who's around you? I don't know. Who's prompting you? I don't know. When you can go mute? I don't know. Okay? Then, more importantly, अगर मेरे साथ दो लोग और बैठे हुए हैं जिनके साथ मुझे क्वेश्चनिंग कराना है, जैसे पलांडे एंड शिंदे, they are in my custody. I want them to be questioned along with Mr. Anil Deshmukh. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे होगा? Sir, but I have a question in this case. Let's say And that is the reason why the enforcement directorate is saying that the question of your requesting for a video conferencing is not tenable, is not feasible because of the reason that I am saying. वो possible नहीं है. In this case, what if, considering this to be an extreme pandemic situation, let's say if ED says, okay, you don't want to come, let's get this done with, we will send one representative from our side, from our agency to your place. Okay, अच्छा, बहुत बढ़िया है, ये तो बढ़िया है. फिर तो जो अनिल देशमुख बोले वही करते रहो, है ना? फिर तो उन्हीं के टर्म्स और कंडीशन में चल रहे हैं, उन्हीं का धौस चल रहा है, उन्हीं की दादागिरी चल रही है, उन्हीं की डिक्टेटरशिप चल रही है. They have used the word dictatorship. हमने उस दिन बोला था ना दादागिरी. आज उन्होंने कहा है कि don't try to dictate us terms. हमने कहा था ना, is Mr. Anil Deshmukh trying to dictate terms? Is he trying to dictate terms? That's exactly what ED has responded कि you are trying to dictate terms. So हम लोगों ने अंदाजा लगाया था, ED ने आज इस पर स्टैंप लगाया, मोहर लगाया, ये अंदाजा सही था हमारा. तो ऐसे में अगर ये रूल बन जाए जेनिफर कि भाई आप अपने इन्वेस्टिगेटर्स को उनके घर पे भेज दीजिए, तो फिर शिंदे और पलांडे को क्यों अरेस्ट किया? क्यों अरेस्ट किया? भाई वो गरीब आदमी है ना, छोटे लोग हैं, तो आपने अरेस्ट कर लिया. और ये भाई साहब उनके मास्टर जो रियल बेनिफिशियरी हैं, उनको आप 10 दिन से लटका रहे हो, एक समन, दूसरा समन, तीसरा समन. भाई उन दोनों को क्यों नहीं समन दिया? Sir, is there a limitation to how many summons you can defer? No, there's no limitation. तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है ना, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसको 3 समन 10 दिन, जो बेचारे गरीब आदमी इनके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे उनको लपेट दिया. उनके तो कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं है, उनका तो राइट ऑफ लिबर्टी है ही नहीं, इनका राइट ऑफ लिबर्टी है, ये फ्री रहेंगे, इनका राइट ऑफ लिबर्टी है. तो राइट ऑफ लिबर्टी बोलता है कि अरेस्ट नहीं करोगे, पेंडेमिक है अरेस्ट मत करो, तो इसका मतलब पूरे देश को बंद कर दो, है ना? सर वही बात है ना, अपने पे बनती है तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स याद आ जाते हैं, दूसरों के टाइम में ये सब भूल जाते हैं. तो जब अर्नब गोस्वामी उनकी वाइफ चिल्ला रहे थे as a journalist, they were shouting, screaming, please give us the warrant, please give us the warrant. उनको कहा जा रहा था कोई वारंट नहीं, यहाँ साइन करो और बी डन विद इट, और लास्ट में घसीट के ले गए. तो फिर मिस्टर अनिल देशमुख को उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो या लीगल राइट्स जो थे उनके बारे में पता नहीं था. करेक्ट. You can't have double standards. You can't have double standards. Gaurav, can you hear me? Gaurav, आवाज आ रही है? Okay. Yes, I'll put Gaurav also on here.
One second. Thank you, sir. I'm done. I'll leave. Just stay on. Let me put Gaurav on here. Gaurav is coming on the platform for the first time, if I'm not wrong. Gaurav, आप पहली बार आ रहे हो? Hi, Gaurav. गौरव, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही गौरव. Can't hear you. एक्चुअली मैं इसमें आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आया. गौरव, आपकी आवाज हेलो. नो, नहीं आ रही है. So he's joining BeLive for the first time. So I know. I think so. हाँ, आप बोलो गौरव, फिर मैं ऑन एयर करूंगा. Sir, I'm actually wait करते करते my coffee has gone cold. I'm literally waiting for Mr. Deshmukh. Go ahead and have your coffee. Jennifer, Bhavesh is also there. I can't see him. Bhavesh is connected, but I can't see him. Yes, Gaurav, just give a audio check once and then I'll connect you. Please say something. हाँ, बोलिए गौरव. Yes, आप ऑडिबल हो. मैं एक बार करने की कोशिश करता हूँ दोबारा ऑन एयर करने. आवाज आ रही है गौरव? हाँ सर, नमस्कार. आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है. बोलिए, आवाज आ रही है? Some problem. Anyway, so Bhavesh, I think, is not connected. Jennifer, you have your coffee and then come back. We will talk only on one point more. I think anyway we'll just wait for Bhavesh to connect. If he connects, fine. Or else, because there is a problem of connectivity on Facebook, we will not stretch it unnecessarily. Anything else? One second. Let me putting you on. सर, मैं ये बोल रही थी, देशमुख जी का वेट करते करते मेरी कॉफी ठंडी हो गई. मैं फेब से वेट कर रही हूँ कि कब इनका कुछ आएगा, कब महाराष्ट्र सरकार का कुछ होगा. I think my coffee has become ice latte now. But every day I wake up with this hope कि आज तो कुछ आएगा. And trust me, the first thing I type in Google when I wake up is Anu Deshmukh news. So I'm really looking forward to something interesting. I can tell you one thing. People get very impatient. आप लोग सब लोग चाहते हैं कि 2 minutes नूडल्स की तरह चीजें हो जाए. ऐसा नहीं होता है. सिस्टम है और वो टेक्स टाइम. इट विल टेक सम टाइम. बट इतना पक्का है कि मिस्टर अनिल देशमुख के कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे. ये तय है. नंबर 1. नंबर 2, इस लेटर में मिस्टर अनिल देशमुख की क्लैरिफिकेशन कम, उनका डर ज्यादा दिखता है मुझे. ही इज एक्सट्रीमली स्कैर्ड. वो क्लियरली बार एप्रीहेंशंस की बात कर रहे हैं. मुझे ये डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है. उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे जितने एलिगेशन लगाने थे सारे लगा डाले. कुछ भी नहीं छोड़ा. क्यों? क्योंकि कल यही चीजें वो एज अ पॉलिटिशियन बोलेंगे कि मुझे कैसे विक्टिमाइज किया जा रहा था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरे अगेंस्ट में क्या क्या किया. आप ये सारी चीजें बोल सकते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि आपका जो चेन ऑफ ट्रांजैक्शन है दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. दैट्स द बॉटम लाइन, जेनिफर. Yes. Okay. Just enjoy your coffee. Thank you so much for connecting. Bhavesh, your video is not there today, so I can't see you. I can see you in the studio, but I can't see you. So there seems to be some problem. So forget it. Let's close the session. It was a fantastic session, fantastic discussion we had. Just maybe only with 2-3 people, but we had a good discussion and it was a good topic to talk about. A lot of people may not be interested because it doesn't concern directly to the case that we all keep talking about, but then every single development that happens is of your relevance. आप लोग आम आदमी हैं. आम आदमी के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है. जो मिस्टर अनिल देशमुख कह रहे हैं वो भी, जो इन्फोर्समेंट के डायरेक्टरेट कह रही है वो भी, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो भी, और इस केस में कैसे डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है वो सबसे ज्यादा. एक नियम इन लोगों के लिए जो कानून बनाने वाले लोग हैं यानी हमारे नेता, और एक नियम उनके लिए जिन पर कानून चलता है यानी जनता. ये 2 नियम जब तक इस देश में हैं तब तक आप जस्टिस एक्सपेक्ट करेंगे. ये डिफिकल्ट हो जाता है. आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, वही नेता के लिए, वही अभिनेता के लिए, वही जनता के लिए. जिस दिन इस देश में एक नियम, वन रूल फॉर ऑल होगा रियल सेंस में, that day will get the real democracy. Right now there is a democracy, but rules are being twisted by those who are in power. And जब वो हट जाते हैं, जैसे मिस्टर अनिल देशमुख नहीं हट गए रूल से, तो फिर वो भूल जाते हैं कि अब वो सरकार में नहीं है. सरकार में वो थे. आज उनके खिलाफ एक केस है और उनसे सवाल पूछ रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. आप एलिगेशन लगाकर, आप नहीं जाकर
जवाब नहीं देकर अपने केस को और कमजोर कर रहे हैं। देर हो सकती है, लेकिन वो होना दुरुस्त चाहिए। Justice delayed is justice denied. We have all heard this, but we just hope that the delay is all good, but it should not be denied. On that note, I close the session. Thank you so much for connecting. Shall be back with something more important tomorrow, because tomorrow we don't know whether the Supreme Court will hear it. It is still not listed, but Mr. Anil Deshmukh is hoping that his case is listed quickly. My understanding is that there is a possibility, and a strong possibility, that Supreme Court may ask him to go back to Bombay High Court, exhaust his option there, and then come and approach Supreme Court, because he has not yet approached the Bombay High Court. I don't know why he didn't do that, but he did not do that. So let's see whether Supreme Court agrees to hear his case directly or ask him to go back to Bombay and then approach the High Court there and then come to us in case the High Court doesn't give him any relief. So it's going to be very interesting. Lot of new facts will come out. Please keep a watch. Don't take your interest away from this case. This is Antilia case and the fallout of that. And prior to Antilia, Mr. Anil Deshmukh was the Home Minister, under which all the controversial cases, starting from Sushant Singh Rajput to Sachin Waze's reinstatement, to Arnab Goswami, to then Antilia, everything happened under his regime. So he's the man to watch out for. Let's see what happens in his case, whether he gets a relief or is denied. Thanks a lot for watching. Stay connected. Come back tomorrow. We shall be talking something